Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Cold War era and we have discussed all the topics of the chapter and now we are doing questions from the chapter. We have done the questions which are given at the end of the chapter and now we are doing some questions from between the chapter because they are very important. There are so many questions and the number of questions, the more number of questions you will go through, the more you will be able to understand the topics and all the content. So it is very much important to go through different types of questions, है ना. क्वेश्चंस जब तरह तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे then you will better understand the content. Okay, so today we will discuss some of those questions which are of higher values, like 6 marks questions जो होते हैं हम लोग उसको discuss करेंगे. Okay, and in this regard we will see some important question like one question is there: how far is it correct to say the international alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states? Explain. First, try to understand the question. The question is कि during the Cold War era जो भी international alliances होते थे, जो भी different countries के बीच में treaties होते थे, alliance होते थे, उसमें दो चीजें काम कर रही थी. One thing was requirement of the superpowers and the other thing was calculation of the smaller states. तो जो भी alliance बन रहे थे उसमें दो लोग इन्वॉल्व थे. एक तरफ सुपर पावर इन्वॉल्व था, है ना, one of the superpower was involved. On the other hand, smaller states were involved, है ना. तो अब ये दोनों का ही रिक्वायरमेंट था. अगर अलायंसेस बन रहे हैं, if alliances are there, then both these were involved. Some requirement was there on the part of superpowers. They were also in need of a military alliance, and smaller states, they were also need of this military alliance. उनके भी कुछ calculations काम कर रहे थे, इनके कुछ requirements काम कर रहे थे. तो ये कहना कहाँ तक सही है? We will see कि it is 100% correct to say that whichever international alliances were formed during the Cold War era, they were guided by the requirement of superpowers and calculations of smaller states, है ना. तो यहाँ पे requirement और calculation इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सुपर पावर्स के क्या रिक्वायरमेंट थे, why they wanted to have alliances with smaller countries and what were the calculations of the smaller states to join any of the military alliance. And we have discussed it. When we were discussing the chapter, we have discussed all these things. First of all, what was the requirement of superpower? The first requirement was to increase its power and influence to increase its powers and influence. There was need of international alliances. ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट का कि सुपर पावर्स को क्यों नीड होती थी. व्हाट वाज द नीड ऑफ सुपर पावर्स टू फॉर्म international alliances? This was the need. They wanted to increase their power, they wanted to increase their influence, and for that purpose they were doing these alliances. Okay, and now the next point, the same thing is there which we have discussed earlier, and when we were discussing questions of 2 marks, we have discussed this also कि उनके resources को use करना चाहते थे, then उनके land को use करना चाहते थे, then
fourth reason is third land and fourth we can say जिस पर्पज से वो यूज करते थे इसको वो क्या था स्पाइंग के लिए, है ना। तो ये होते थे जो बड़े पावर्स थे, सुपर पावर्स थे, उनका ये रिक्वायरमेंट था छोटे पावर्स से। एंड नाउ वी विल सी व्हाट वाज द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। आखिर स्मॉलर स्टेट्स क्या कैलकुलेट करते थे, क्यों उन्हें इंटरनेशनल अलायंस की जरूरत पड़ती थी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी what were the calculation of smaller states. As we have seen, so the smaller powers, they also wanted to be an ally of superpower. The most important calculation was their relationship with their neighboring countries. We are very much aware that any country which it shares its boundary with whichever country, there will be boundary dispute. It's very natural to have boundary dispute with our neighboring countries, with those countries with which we are sharing our boundary. तो boundary dispute होना it's a very very normal thing, मतलब ये होता है। अब जो भी स्मॉलर स्टेट है उसका जो सबसे पहला कैलकुलेशन है वो ये है कि इस तरह से सुपर पावर के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए ताकि नेबरिंग कंट्री जो है हमारे, जिसके साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज आ सकते हैं या आ चुके हैं, उनके साथ हम चीजों को डील करने में एक अपर हैंड हो सके हमारा। तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज। Okay, relation with neighboring countries. They wanted protection. उनको protection चाहिए क्योंकि वो smaller countries हैं। उनके लिए security तो हर किसी के लिए the most important thing है security, अपने आप को secure करना। तो अपने आप को secure करने के लिए उनको protection चाहिए। They wanted protection. और अगर वो सुपर पावर के अलाइ बन जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इफ दे आर एन अलाई ऑफ द सुपर पावर देन दे विल गेट प्रोटेक्शन, है ना। यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। देन उनका जो नेक्स्ट कंसर्न होता था वो होता था मिलिट्री हेल्प। अगर वो किसी अलायंस में जाते हैं सुपर पावर के साथ तो दे विल गेट मिलिट्री हेल्प, दे विल गेट इकोनॉमिक एड, है ना। मिलिट्री हेल्प में उनको वेपन्स मिल सकते हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल सकती है। देन इकोनॉमिक एड, है ना, इकोनॉमिक एड उनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जो हैं उनके जो भी लोकल राइवल्स हैं उनके अगेंस्ट उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं एंड दैट इज द मेन कैलकुलेशन बाय द स्मॉलर कंट्रीज। तो इस आंसर को हम लोग इसी तरह से करेंगे कि आखिर सुपर पावर्स का क्या रिक्वायरमेंट था और स्मॉलर स्टेट्स का क्या कैलकुलेशन था, और इस तरह से जो अलायंस सिस्टम था वो फ्लरिश कर रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। Now the next question is, why was the end of Second World War considered to be the beginning of the Cold War? This is a very important question and it is very important to understand also, है ना। जितने ज़्यादा आप variety of questions को जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना content समझ में आएगा, क्योंकि कई बार जब question rise होता है तब हमें चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके, इस क्वेश्चन को आई विल राइट डाउन। द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाई वाज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर considered to be
कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो, है ना। इस क्वेश्चन के भी आंसर को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, नॉट एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड द वे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, एक्चुअली दैट paved the way for the starting of the Cold War, because we all know that at the end of the Second World War, this nuclear bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki, and with this what happened, that it became completely clear that if the world is going to face the third world war, it will be a nuclear war, because अगर second world war का ही end हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ, तो ऑब्वियसली अब जब भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही यूज होने हैं, है ना। तो ये अब क्लियर हो गया था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ होगा, and the impact of this use of nuclear bomb will be devastating for the existence of the whole human being. The existence of the whole humanity may be in danger. तो ये समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट, हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। ठीक है, ये आप लिख दिया आपने। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट हैपेंड, emerged two superpowers emerged, है ना। Emergence of two superpowers, and these two superpowers were holding not only different but opposite ideologies, है ना। Emergence of two superpowers which represented opposite ideologies, and there was rivalry, conflict between these two superpowers, because they were almost equal in their power, be it military power, be it political power, be it economic power. In all spheres of life, their power was almost equal, and this equality of power and this difference of ideology gave rise to the rivalry between the two. Okay, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो जाता है, राइवलरी, टू सुपर पावर्स इमर्ज कर जाते हैं, उनके बीच राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। राइवलरी भी बहुत हाई लेवल की राइवलरी, और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट वी फाइंड कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे थे अब 1950s में, 45 को छोड़ दिया हमने, अब हम 1950s में अगर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे थे वो कैसे थे, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव थे। अगर हम उन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इसको कंपेयर करें जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज किया गया था, उनके कंपैरिजन में जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे 1950s में, उनका 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन का पावर था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कहाँ हम जा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में जबकि राइवलरी खत्म नहीं हुई, ठीक है, और न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो गया, ऐसे में इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि ये दिस राइवलरी कैन लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट the third world war will cause such a destruction, such a devastating effect that there will not be any difference between a winner and a loser, है ना। तो ये समझ में आ गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना, बट राइवलरी तो है। तो इसका ही जो कंसिक्वेंस था
वो था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको इसी तरह से सम अप करेंगे कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जिस तरह से दो सुपर पावर्स थे और जिस तरह की उनके बीच की राइवलरी थी, राइवलरी और साथ ही साथ म्यूचुअल सस्पिशन का एटमॉस्फेयर था, राइवलरी एंड म्यूचुअल suspicion, and this rivalry and mutual suspicion led to the increase in the nuclear arsenal of the not only the superpowers but the other countries as well. ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि इस राइवलरी के कारण न्यूक्लियर वेपन्स का आर्सेनल बढ़ता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर आर्सेनल, और इसी के साथ साथ लॉजिक ऑफ डेटरेंस काम करने शुरू कर देता है और कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने कर लिया। अगर देखो, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज हुआ होता तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए हम तैयार होते, बट जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसने ये कह दिया कि नहीं, अब हम थर्ड वर्ल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मतलब we the people of this world, we the human being are not ready to afford the devastation of the third world war. Okay, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। And now we will see another question, and this is also a very important question, and these are the questions which are very much important to understand in order to understand the content. The question is, justify द कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर को आप जस्टिफाई करिए। हाउ कैन यू जस्टिफाई द कोल्ड वॉर? जस्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाई? जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मीन्स कि वी आर सेइंग कि अगर कोल्ड वॉर हुआ तो वो अच्छा था, उसका होना सही था, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका होना सही था, उसके होने से कोई दिक्कत खराबी नहीं हुई, बल्कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही कर गया। क्या कर गया? अच्छा, कैसे कर गया? तो इसमें हमें यही लिखना है कि द सेम थिंग, कि जिस देखिए कंटेंट इज सेम है ना, चीज एक ही है, लेकिन उसके अंदर कई तरह के अलग अलग चीजें निकल कर सामने आती हैं। अभी हमने देखा कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन के पीछे भी वही चीजें हैं। पहली चीज हम यही लिखेंगे कि द वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है उस तरीके ने ये बता दिया कि अब जो भी वॉर होगा, अगर उसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर एंड दैट न्यूक्लियर वॉर विल कॉज डिवास्टेशन, devastation of unimaginable magnitude. The devastation which will be caused by nuclear war, the devastation which will be caused by nuclear war cannot be measured. That is unimaginable. ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो अगर कोल्ड वॉर है तो क्या है? राइवलरी है, rivalry is there, okay, competition is there, conflict is there, सब कुछ है। और because of this rivalry, conflict and competition, what is happening? क्या हो रहा है? शूटिंग वॉर्स हो रहे हैं। तो ये जो शूटिंग वॉर्स हो रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? दीज आर ऑल्सो वॉर, है ना। शूटिंग वॉर भी तो वॉर ही है, लेकिन इस वॉर से हमें बहुत दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है वो बहुत कम है ना। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ शूटिंग वॉर्स में भी होते हैं, जैसे कोरिया में हुआ, कॉन्गो में हुआ, देन
बर्लिन में हुआ, ऐसे शूटिंग वॉर्स के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। एंड इन दिस शूटिंग वॉर्स ऑल्सो देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, बट दैट लॉस ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी मच लेस, बहुत कम है अगर वो वर्ल्ड वॉर होता तो शूटिंग वॉर्स का होना, कोल्ड वॉर का होना, और बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड वॉर शूटिंग वॉर्स का होना, यहाँ तक जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, उसको हम अफोर्ड कर सकते है ना। बट अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही होता, और उस थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो डिवास्टेशन होता उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम कहेंगे कि अगर कोल्ड वॉर हुआ तो इससे ह्यूमन लाइफ्स सेफ हुए, एंड दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, इसका यही जस्टिफिकेशन है। अब इसके बाद हम लोग इसमें और भी क्वेश्चंस देखेंगे। Now, there is another question. Describe the role played by India in keeping the non-aligned movement alive and relevant. India ने क्या रोल प्ले किया non-aligned movement में? So, India's role in non-aligned movement. First and the most important, foundation. We are the one of the founder members, है ना। वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं हम, किसके? नैन के। पंडित नेहरू ने जो रोल प्ले किया वो बताता है। देन सेकेंड थिंग वी विल सी दैट वी आर वेरी मच एक्टिव, वी आर प्लेइंग an active and constructive how we are active. We are not neutral, we are not isolated, we are very much involved in the world politics. Whatever is happening in the world, we are there to express our views, we are there to take a stand on that. We are not following any kind of policy of isolationism or neutrality. We are very much active in world politics, and this participation in world politics is positive in nature. Why is it positive in nature? It is positive because we are contributing in ensuring world peace and security. We are contributing in ensuring world peace and security. Whenever there is conflict between any two countries or more countries, which can lead to the danger, which can lead to the threat, which can cause a threat to the world peace and security, at that time we have played a very important role. The example is Korean crisis. से 53 के बीच में जो कोरियन क्राइसिस आता है, उसमें जो पंडित नेहरू ने जो रोल प्ले किया, दैट इज a very important example of our active and constructive role in non-aligned movement. तो non-aligned movement में हम लोगों का जो रोल है वो ये कहेंगे कि एक तो फाउंडेशन में हमने हेल्प किया, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, और साथ ही साथ हमारा ये कहना था कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको नाम को ही ज्वाइन करने के लिए इंडिया ने अपने तरफ से एफर्ट किया, है ना। एफर्ट to make newly independent countries of effort to make newly independent countries a part of NAM. हमने यही एफर्ट किया कि सब जो है वो NAM के पार्ट बने रहे, है ना। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट को हमने लाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको हमने लाइव बचा के रखा, है ना। सो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन, एंड नाउ वी विल सी another question. Now there can be another question like on what basis the India's policy of non-alignment is
क्रिटिसाइज, किस बेसिस पे इंडिया के नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है? When we were discussing the chapter, we have discussed about it, है ना? So this is criticism of the non-aligned policy of India. किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं? वी हैव सीन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस इज द बेसिस ऑफ अनप्रिंसिपल्ड। ये कहा जाता है कि जो नॉन अलायंस की पॉलिसी थी वो अनप्रिंसिपल्ड थी। अनप्रिंसिपल्ड कहने का क्या मतलब हुआ? अनप्रिंसिपल्ड कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी ये नहीं था, कोई किसी भी आइडियोलॉजी को, वी वर नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द आइडियोलॉजी, नीदर द capitalist ideology nor the socialist ideology, because we were non-aligned. So in this condition we were not taking a firm stand on any political issue, on any international political issue. कुछ भी political issue आ रहा था तो उस पर हम एक firm stand नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हम दोनों के साथ थे। तो इसको कहा जाता है opportunist होना, opportunistic. India was blamed to be an opportunistic country. जब जिसके साथ आपने सही रहा आप उसको अपना लिए। Like we have seen कि जब हंगरी पे यूएसएसआर ने मिलिट्री इंटरवेन किया तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा, और जब वही काम ब्रिटेन ने स्वेज कनाल को लेकर के किया इजिप्ट पे तो फिर इसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? यू आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रिंसिपल. That is one of the most important criticism. And the second criticism is about the peace treaty. The peace treaty which was the Treaty of Friendship, not peace treaty, Treaty of Friendship, which was done in the year 1971, August 1971, है ना? तो अगस्त 1971 में जो ट्रीटी इंडिया ने किया यूएसएसआर के साथ, उसको लेकर भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि यू आर क्लेमिंग टू बी अ नॉन अलाइन्ड कंट्री बट यू आर इन अ ट्रीटी, यू आर इन अ काइंड ऑफ अलायंस विथ यूएसएसआर, है ना? क्योंकि इसमें आपने 20 इयर्स के लिए उसके साथ मिलिट्री अलायंस करते हैं। इट वॉज नॉट मिलिट्री अलायंस। हमको इन दोनों को ही डिफेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से कि अगर हमें कहा जा रहा है कि अनप्रिंसिपल्ड थे तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एंड इट वाज द व्यू ऑफ नेहरू कि वॉट एवर वी आर सपोज टू डू, वॉट एवर स्टैंड वी विल बी टेकिंग इन द इंटरनेशनल एरिया, ना दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. So that is important thing. We used to be we were under the colonial rule for the last 200 years. तो उसमें जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ उस समय प्रिंसिपल कहाँ था, है ना? तो हम इसको अनप्रिंसिपल्ड कहना नहीं कहेंगे, इसको होना नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम किया. एंड अगेन जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुआ दैट वाज आल्सो गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट. एट दैट टाइम अ काइंड ऑफ एक्सेस was forming among Pakistan, China and US. ये तीनों आपस में मिल रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का जो सिचुएशन हो रहा था उसमें कुछ भी हो सकता था. वॉर का जो पॉसिबिलिटी था वो बढ़ चुका था और ऐसे में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आ गया था. तो इंडिया ने अपने सिक्योरिटी को, अपने सर्वाइवल के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी किया. एंड दिस ट्रीटी वाज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्योंकि मिलिट्री अलायंस में तो ये कहा होता है कि अगर आपने हमारे साथ ट्रीटी, यूएसएसआर के साथ ट्रीटी कर ली तो आप यूएस के साथ नहीं कर सकते. ऐसा कोई भी क्लॉज इसमें नहीं था कि ये आपको मना कर रहा है कि आपको यूएस के साथ ट्रीटी नहीं करना. यू आर फ्री टू मेक अलायंस विथ यूएस ऑल्सो, है ना? तो ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था. ये हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए इस ट्रीटी को किया था. तो ये जो भी क्रिटिसिज्म किया जाता है ये सही क्रिटिसिज्म नहीं है. ठीक है, इस तरह से डिफेंड करते हुए हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.